अभी ऐसे चीज़ को तो हम लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे पहले हम लोग प्रूव करना पड़ता है ना, तब गवर्नमेंट एक सपोर्ट करेगा। हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करता तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग का टैलेंट है, हम लोग कैसे ले जाते हैं वो हम लोग के ऊपर है। तो लाइक गवर्नमेंट का इसमें कुछ रिलेट नहीं होता है। बस गवर्नमेंट तब सपोर्ट करे जब हम लोग आगे भी बढ़ेगा। उसमें तो ऑब्वियसली जैसे मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट जाते समय बहुत सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से, क्योंकि हम एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया। जैसे वो Hi, I am Navam Tunki and you're watching Arunachal Eye. Right now we are here at Directorate of Art and Culture Auditorium Nahalagan, where the finals of Best a Hip Hop Dance Championship is taking place, organized by Pop Girl Nangmya Chanda. So stay tuned with us. Siniga ani so ei suni moraso aro jerjo mochare so silga yulo yutale so atta gute tad ruira so ay gamre yo por sonyo tela loire so silog alo soja jinja yulobo alo soja jinja silog alo soja jinja yulobo alo soja jinja Pabgadole pamtak dole purado reso namagali ne kojerine kaila itso silogo alo soja jinja yulogo alo soja jinja silogo alo soja jinja yulogo alo soja jinja These few words, I would like to end my words. But before that, I'd like to say something. Let's not do drugs, let's dance. Thank you. Make this event a successful one. Being the responsible citizen and as a brother, as a elder, as a whatever, I would like to take this opportunity, this is your new friend and the host of the evening. Judges, participants, and all the sponsors. And yes, we मेरा नाम शशि राय है और मेरा डांस फॉर्म जो कंटेम्प्री है और थोड़ा मतलब अपना स्टाइल में करता है। और आज मतलब जीत के बहुत अच्छा लगा है और बहुत सरप्राइजिंग था। थैंक यू नंगम्या चंदा मैम, वो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और थैंक यू मतलब जो इतना सारा लोग सपोर्ट किया है, पेरेंट्स लोग सपोर्ट किया है और इतना बाहर से आर्टिस्ट लोग आए हैं, सब लोग आए हैं, तो वो लोग। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू मतलब विनर्स ग्रुप का, सोलो का रनर अप। थैंक यू, हो जाएगा। Alright, so this is Vibe Crew, myself Sammy, and I would like to introduce the members of the Vibe Crew. Firstly, Pankaj, yeah, he's a co-founder of the crew. Scout, yes, SSG, and my favorite people, Samurai, sorry. And it's not because of me, it's because all of our hard work, and we are so glad and honored to perform in those three, in front of the crowd, in front of these talented judges. And we are kindly out of words right now. It's a mixed emotion and it's a bit of struggle, you know, so I cannot explain in words, but we're really grateful that we are here, we won the title. And let me tell you guys one thing, this is the first time we perform. Yeah. We belong from an underground scene, we battle actually, we don't compete in a commercial competition, but it was our first time
And guess what? By God's grace, we won, and this is it. Thank you so much, guys. We the Vibe Crew, yeah. And sir, like जो आपका जो बाकी साथी था, बाकी Yes. friends था, they are also contributing the equal Exactly. energy. Yes, yes, And yes. You have to say any words to them. Everybody was super great. बहुत ही ज़्यादा like very competitive. Like it's not an easy win, honestly. It was not an easy win. We did our level best and we won. But one competition will not judge who was better, who was not. So it's just a moment of time. So yeah, everybody was great. So. Sir, आप लोग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था जो ये ग्रुप का? So we started back in 2017 जहाँ पे हम लोग का ऐसा मोटिव नहीं था. Then gradually I'm from Dibrugarh. So if you guys don't know, Dibrugarh, Assam, Upper Assam. And so we 3-4 members formed the crew. Me, Nitish, Ronit, Pankaj, Bhaiti, Bablu, Papon. So 7 members. We all formed the crew and gradually over the years ये crew बढ़ते गया. Now he is from Guwahati. These 2 are from Sibsagar, Duliajan. So all parts of Assam. Alright. So we basically battle and now we are starting our journey with all types of competition as possible as we can. So yeah. Thank you so much. पहले तो मेरा नाम है रूपराज दसनेत एंड देन मुझे अच्छा लगा. मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया एंड देन सेकेंड रनर अप है, सेकेंड आया है तो भी अच्छा लगा है. मतलब जितना मेहनत किया है उस हिसाब में मुझे ये मिला है. तो होप करते हैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेगा एंड नेक्स्ट वॉल्यूम 3 में विनर बनने के लिए ट्राई करेगा. एंड इसी तरह सबको गुड नाइट. मेरा नाम तेची गोम है और हम लोग सब भाई जैसे ही है, एक दूसरे का हम सब ब्रदर्स ही है. इसका नाम गोलो तुमा है, इसका नाम तेची डेविड है और इसके नाम न्यारी तुगू, इसके नाम अभय कुमार है और इसका नाम डेनियल है, डेनियल मारालिगू. तो हम लोग सब एक ही क्रू का है. तो सर आप लोग का ये ग्रुप जो कैसे फॉर्म हुआ था सर? हम लोग का क्रू एक्चुअली हम लोग सब अलग अलग मतलब पार्ट्स में रहते हैं. जैसे ईटानगर का ना, कोई न्यूजुली का है, कोई मोप्तू का है, कोई चिंपू तरफ का है. तो हम लोग सब मतलब हम लोग ऑलरेडी हम लोग का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है. ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं. 10-15 साल हो गए हम लोग एक दूसरे को जानने वाला है. तो हम लोग का केमिस्ट्री ऑलरेडी अच्छा है. तो हम लोग ऐसे सोचा ना क्यों ना मतलब प्राइस बहुत अच्छा है ना, और ऐसे अच्छा चांस भी मिले कि हम लोग को मतलब एक नहीं होता कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिले कि हम लोग डीजे बूम को हम लोग अच्छे से ट्रिब्यूट कर सकते हैं. तो हम लोग बहुत रैपिडली मतलब वो क्या है आइडियाज़ लाए कहाँ से. इसके बाद हम लोग क्रू फॉर्म किया एज ए रो फ्रेशनलिस्ट बोल के, तो हम लोग कर दिया. थैंक यू. सर कौन सा बेसिस में सर आप लोग जो आज का विनर उनको जज कर रहे सर, मतलब कौन से एलिमेंट क्या क्या देखा था सर बता दीजिए. तो हम लोग का फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है. सिंस इट्स अ competition, like a stage competition, there are a lot of rules to be followed. It's still a hip hop event, but in the basis of how creative you bring your concept and your production together, like things like a sync, style as in like your attire, but also style as in like street dance styles, the difficulty of that, also the concept as well. That's a plus point. But usually what we're looking for is how good are you with the music, how good is the edit of the music, and how well it is executed together. So 3 of us, like having each of our individual style, we are judging on the basis of creativity and all the elements that I mentioned right now. सर जितना भी जो विनर्स है उनसे भी सर आप क्या कहना चाहेंगे? कि हाँ, विनर्स को मैं इतना ही बोलूँ कि सेलिब्रेट टुडे बट गेट टू वर्क टुमारो. हाँ मतलब आई मीन टुडे यू आर अ चैम्पियन बट टुमारो समवन एल्स इज गोना रिप्लेस यू. सो ऑल द विनर्स celebrate, enjoy it, but tomorrow get to work again because someone else is working hard to get better than you. So that's the only advice to the winners. Yeah. हाँ, exactly. I mean, see, it's a competition. You either you win or you learn. You don't lose, and not everyone can be a winner. So that should be another reason for people to work hard. See, all these accolades and titles are just to remind you of your hard work. The more you work hard, the closer you're to a reward, you know. And the people who didn't win or qualify, they are not bad. It's just the competition was really tough. Like all of us, like scoring was like 0.2, 0.4 difference, you know. That doesn't mean they're bad. It's just that is how tight the competition is. And in our language, street style, in tight we mean like very close call, you know. So yeah. सर आपको क्या लगता है सर यहाँ पे ये जो हिप हॉप का जो कल्चर है उसका स्कोप कैसा है? Oh, definitely. स्कोप? हाँ, definitely. I mean, with me, he's one of the pioneers
of Arunachal, like one of the, like in our language, pioneer as in like people who started this off, like veterans, you know, and definitely scope hai. What you see here is the seed. हम लोग यहाँ पे आज seed plant किया है, and now we'll take care of this and the seed will grow. आप already देख सकते हो लोग कितना बाहर से आए, not just from Itanagar, there are people from outside as well. So my only dream and hope will be, I hope the world comes to Itanagar instead of Itanagar going to the world, because over here the scene is definitely growing. Yeah. Thank you so much. Thank you. आप एज गेस्ट ऑफ ऑनर आकर यहाँ पे आज जो प्रोग्राम को विटनेस किया, इतना ग्रैंड वे से प्रोग्राम सक्सेस हुआ तो आप विटनेस किया, आप जब यहाँ आ रहा था आपका ओपिनियन क्या था और प्रोग्राम को देखकर आपका ओपिनियन कैसा था? नहीं, मुझे यहाँ आने से पहले इतना तो पता था कि ये एक टैलेंट कंपटीशन होगा, पर टैलेंट में भी कई कैटेगरी होता है, डांस का, सिंगिंग का, और सिंगिंग डांसिंग में भी एक अलग अलग कैटेगरी होता है। तो मुझे पता नहीं था कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक हिप हॉप का लेके कंपटीशन है, पर यहाँ में आने के बाद मालूम चला कि सिर्फ हम लोग का जितना पार्टिसिपेशन आया, उन लोग सिर्फ हिप हॉप का डांसिंग बोल के टैलेंट नहीं है उनका, काफ़ी जजेस लोग ने भी बोला कि उनका टैलेंट पूरा मिक्स है। डांस ऐसे ऐसे डांस आज देखने को मिला जो मैं भी कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा। तो सर आप ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आज का जो प्रोग्राम का जो हिप हॉप कल्चर है उसको आप कैसे सपोर्ट करेगा आगे चलकर आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपसे मीडिया के थ्रू ये अपील करूँगा कि ये देश इंडिया एक उभरता हुआ देश है। देश के साथ साथ हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश भी एक उभरता हुआ प्रदेश है। आज हर जगह बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है हर फील्ड में। तो मैं ये युवा लोग से इनको सपोर्ट करने के लिए युवा लोगों को मैं यही करूँगा कि मतलब सिर्फ आपको नौकरी करना बोल के नहीं है आज का दिन में। देयर आर मैनी ऑप्शंस दैट यू कैन मेक योर लाइफ। अभी हम लोग का कनेक्टिविटी इतना अच्छा हो गया है, पहले परफॉर्मेंस करने जाने के लिए आपको 5-7 दिन लगता था, अभी फ़्लाइट बुक किया, आपका परफॉर्मेंस है, आप पहुंच गया। अभी सब कुछ ईज हो गया। डांस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डांस इंडिया डांस है, और नेशनल टीवी में काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारा। और इसमें काफ़ी हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है चंदा बहन, इन्होंने भी काफ़ी स्टेट में अच्छा नाम कमाया स्टेट के लिए भी। और आज का दिन में ये अरुणाचल का जो डांस का सिनारियो को आगे बढ़ाने के लिए ये सब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और मैं तो कोई नहीं हूँ, पर भी एज ए यंग यूथ इस प्रदेश का, मैं भी हर समय को मेरे तरफ से जो भी मदद होगा, जो भी कुछ भी चीज़ होगा, तो चंदा बहन लोग का जैसे और बाकी ऑर्गेनाइजर्स भी इस टैलेंट, ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा साथ देने के लिए हमेशा साथ में हूँ, मेंटली, फिजिकली, ऑल्सो इमोशनली। तो मैम आपको ये प्रोग्राम में आज विटनेस करके मैम आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आज तो मैंने बहुत अच्छा लगा है। ये जो प्रोग्राम जो होता है, हम दूसरों को हम नहीं बोल देगा कि अच्छा नहीं करता है, लेकिन ये जो एक मेरा एज पर मैं ऑब्जर्वेशन हमने लगाया कि बहुत यूनिक लगा। तो यूनिक क्यों कहूँ कि इतना यूथ माने हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन ये प्रोग्राम में हुआ है। तो उन लोग का जितना भी क्रू मेंबर है उन लोग भी यूथ था, बच्चे लोग ही था, और जितना चीफ गेस्ट बुलाया उन लोग भी इनर्जेटिक यंग ऑफिसर्स एंड ये एंटरप्रेनर लोग था। तो इसलिए हम तो बहुत अच्छा लगा एंड बहुत यूनिकनेस लगा है। तो मैम जैसे कि आप एक नौ पोजीशन का तो आपने स्पॉन्सर किया, तो आज अब ये प्रोग्राम में आपका थ्रू से ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ होगा ऑन द अदर हैंड, तो जितना भी पार्टिसिपेंट था उन सभी को आप क्या एडवाइस देना चाहेगा आपका तरफ से एज ए पेरेंट्स ऑल्सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि माँ प्रोडक्शन का वजह से ये सक्सेस हुआ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इतना स्पॉन्सर्स वाला लोग भी था यहाँ पे, बहुत लोग सपोर्ट किया है, तो उन स्पॉन्सर्स लोग का वजह से भी सक्सेस हुआ है। और साइड बाय साइड मेरा बच्चा लोग को भी देखा है कि उन लोग का डेडिकेशन का वजह से इतना डेडिकेट किया एकदम ये करके, तो ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। तो सब मिलजुल के ये प्रोग्राम इस बार सक्सेस हुआ है। तो ये मैं ऐसे मैसेज देना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम को इसी में सिर्फ नहीं रह जाना चाहिए, तो उसको आगे बढ़कर रहना है, तो उसको आगे ले जाके हम लोग नेशनल लेवल में। और आज भी देखा है कि असम से भी कोई पार्टिसिपेंट आया है, और ये कोई शिलोंग से भी आया है, तो उन लोग को देख के भी बहुत अच्छा लगा। और उसको हम लोग का एक जो पेरेंट्स और जितना भी यहाँ का बिजनेसमैन है, जितना भी ये ऑफिसर्स है, तो इसी प्रोग्राम को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं एक उम्मीद रखता है कि और भी ज़्यादा स्टेट लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। अगर बाहर का स्टेट लोग आएगा तो हमारा बच्चा लोग भी सीख मिलेगा। तो ये मैं संदेश देना चाहूँगी। मैम आपसे लास्ट मैम एक सवाल है मैम, पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहिए, क्या मैसेज? क्योंकि हम लोग का सोसाइटी में पेरेंट्स लोग ऐसे कि बस पढ़ो
ऐसा ही रहता है, तो इस स्टडी पे फोकस करो, बाकी खेल कूद में ध्यान मत दो। तो इस विषय में आपका क्या ओपिनियन है मैम? तो पेरेंट्स लोग का मैं यही सजेस्ट है, स्टडी सिर्फ जो होता है करियर नहीं बनता है, जो देंच अलग अलग स्किल होता है बच्चा लोग का, तो उन लोग का स्किल क्या में एक्सपर्ट है उसी में ले जाना है। लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुत सा प्लेटफॉर्म है अरुणाचल में भी, तो उसी में मैं देख रहा है कि पेरेंट्स लोग भी बहुत सपोर्टिव है, अपना बच्चे को लेके आता है जहाँ में कंपटीशन होता है तो अपना बच्चों को स्पॉन्सर करता है, उन लोग ड्रेसिंग वगैरह ये सब बहुत अच्छा तरह से कर रहा है, तो उसको हम लोग बड़ी ये आगे ले जाना है, तो ऐसे ही करते रहना है। तो उसका साइड बाय साइड में बच्चा लोगों से भी ये कहूँगा, तो डांस को एक करियर में रखिए और अच्छा करना चाहिए, एक फैमिली का रोशन के लिए करना चाहिए। वो नहीं कि हम लोग डांस कर रहा है पढ़ाई को छोड़ देगा, वो भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा माँ प्रोडक्शन का तरफ से एक संदेश है। थैंक यू मैम। तो मैम कंग्रेचुलेसन मैम, आपका प्रोग्राम इतना ग्रैंड वैसे सक्सेस हुआ। तो मैम यूजुअली हम लोग का स्टेज में इतना बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में तकलीफ होता है, तो मैम आप लोग का क्या एक्सपीरियंस था इस प्रोग्राम का? क्योंकि सुनने में आया कि गवर्नमेंट बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं किया, हम लोग को जितना लोग स्पॉन्सर किया है दे आर लाइक देयर ऑन अपना प्राइवेट है, तो उन लोग ने हम लोग एंड बहुत थैंक यू उन लोग को, उन लोग के बिना तो हम लोग का इवेंट भी एकदम सक्सेस नहीं होना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर्स जिसने भी किया है हमें, आई रियली अप्रिशिएट देम। तो बहुत तकलीफ़ था, हम लोग को 3 महीना में इतना इधर उधर भागना पड़ा। माई टीम दिस टीम्स एंड ऑल बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो लोग नहीं होता तो ऑब्वियसली हम लोग का इवेंट बिल्कुल नहीं होता। और स्पॉन्सर ढूंढना तो आप लोग को खुद से भी पता है कितना तकलीफ़ होता है, बट थैंक्स वी फाइनली गॉट सम स्पॉन्सर्स। हम लोग तो इवन ये भी सोचा था कि हम लोग करेगा ही नहीं, समझ एक आता है बीच में कि सक्सेस नहीं होगा, बट फाइनली आज हम लोग को मालूम चल, जैसे आप भी देखा है कितना ग्रैंड सक्सेस हुआ है। प्रोग्राम काफ़ी ग्रेट सक्सेस किया है। तो मैम एग्जैक्टली ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जैक्टली क्या है इसमें, मतलब क्या क्या डांस फॉर्म आप कराते हैं? एक्चुअली जब फर्स्ट सीज़न हुआ था तब बैटल हुआ था, बैटल में जैसे बोल तो ब्रेकिंग होता है, पॉपिंग होता है, ये सब था। तो फर्स्ट में हम लोग बैटल कराया था, एक एक करके आके 1-on-1 वाला बैटल था। तो इस बार वी थॉट कि हम लोग कुछ नया करेगा, तो हम लोग जो क्या किया स्टेज परफॉर्म कराया है, वो भी क्रू चैम्पियनशिप हिप हॉप कल्चर को लेके हम लोग कराया है। सो अगर हम लोग अगला बार भी करेगा तो कुछ नया करेगा, ऐसा करके हम लोग का धीरे धीरे हम लोग स्टेप बढ़ते जाएगा। मैम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मोटिव क्या है मैम? ये प्रोग्राम तो बहुत लंबा कहानी है, फिर शॉर्ट में बताएगा। प्रोग्राम जो ऐसा है कि चंदा जो आया था बाहर से, तो वो आके हमको एक दिन पूछा कि प्रोग्राम ट्राई करके देखेगा। जो फर्स्ट सीज़न था 2016 में था, तो उसमें हम लोग 2 हफ्ता में हम लोग इधर उधर भाग के 2 हफ्ता में ऑर्गेनाइज़ किया। तो ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इतना सक्सेस हो गया कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि अरे इतना सक्सेस हो गया। बाहर से लोग आया, एवरीवन केम आउट, ये दिल्ली से आया, कोलकाता से आया, मुंबई से आया, बहुत, और नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत आया। सो इतना सक्सेस हो गया। फिर बीच में गैप हो गया, थोड़ा लंबा गैप हो गया, तो हम लोग को बहुत लोग बोला है कि वी नीड सम सेकंड सीज़न चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसलिए हम लोग बनाया है क्योंकि यहाँ का हम लोग का जो कंटेस्टेंट होता है वो लोग को बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी इतना नहीं मिलता है। समझ हम लोग क्या कि बाहर का लोग को हम लोग इनवाइट करके यहाँ पे बैटल करा के, यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करा के, सब चीज़ करा के, तब क्या होता है कि हम लोग का जो लोकलाइज होता है, जो लोकल डांसर्स होता है, उन लोग को आइडियाज़ मिलेगा उन लोग क्या होते हैं क्या नहीं, धीरे धीरे करके उनको पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ किया। हाँ जी। तो मैम आपको लगता है ये मतलब इसमें कुछ स्कोप होगा पार्टिसिपेशन को? आपको क्या स्कोप है, बिकॉज हम लोग के पास आप लोग जैसे मीडिया पार्टनर से अरुणाचल आया है, तो अभी लोग को मालूम चलेगा। लास्ट टाइम फर्स्ट सीज़न में देयर वाज़न्ट एनी मीडिया पार्टनर, तो उसमें तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना, बट इस साल हम लोग स्कोप रखने के लिए स्कोप मिलेगा बोलकर हम लोग जो आप लोग को मीडिया पार्टनर्स लोग को बुलाया है, बाहर से जजेस लोग को बुलाया है। कुछ हम लोग का यहाँ का जो डांसर्स होता है, जैसे कि पेरेंट्स लोग कोई लोग डांस में इतना सपोर्ट नहीं करता है, तो बाय दिस आई थिंक सो उन लोग को थोड़ा समझ में भी आएगा कि हाँ डांस में भी स्कोप है। पीपल हम लोग का यहाँ का हम लोग का जो ओल्डर जनरेशन होता है, वो लोग सोचते हैं कि डांस में कुछ स्कोप नहीं, डांस में भी स्कोप है, हर चीज़ में स्कोप होता है, सिंगिंग में भी स्कोप होता है। आजकल का ज़माना में देखो पेरेंट्स लोग को धीरे धीरे मालूम चले कि सिंगिंग में स्कोप है, तो बेस्ट है अभी सिंगिंग के लिए, क्लासेस भी बेस्ट है, बट डांस के लिए कोई नहीं पूछता है। सो हम लोग का जो यंगर जनरेशन है, इसको अभी ट्राई कर रहे हैं आगे में कैसा करके लेके जाएगा, कैसा करके हम लोग जो आइडिया फैलाएगा, कैसा करके हम लोग उन लोग को
समझा सकेगा कि डांस में भी स्कोप है बोलकर। सो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप क्यों नहीं होगा। तो मैम जितना पार्टिसिपेशन था सब इक्वली पार्टिसिपेट किया है, इक्वली हाँ। कंट्रीब्यूट किया, इक्वली एनर्जी लगाया, लेकिन विनर्स बस एक दो को ही दिया गया। तो बाकी पार्टिसिपेशन का क्या कहना चाहेगा एज ए ओवरऑल इंचार्ज? एज एन ओवरऑल इंचार्ज बाकी पार्टिसिपेंट्स लोग का एक्चुअली क्या है कि हार जीत तो होता है हमेशा, हर जगह में, हर चीज़ में हार जीत होता है। कोई फर्स्ट मिलता है, कोई लास्ट मिलता है, बट जो जिसको नहीं भी मिला है ना, वो लोग भी इतना अच्छे से किया करके गया, उन लोग को नॉलेज मिल के गया है। अच्छा इस बार हम लोग को नहीं मिला, फिर आएगा कि अरे हम लोग को ये स्टाइल करना है, वो स्टाइल करना है। तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे कुछ सीख के नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीख के गया है। द केम टू नो कि अरुणाचल में भी ऐसा है, ये भी मालूम चल, क्योंकि आपको से मालूम है गुवाहाटी से, असम से, नागालैंड से, इतना जगह से आया है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो उन लोगों को भी मालूम चल रहा है कि अरुणाचल में बड़ा इवेंट होता है, चैम्पियनशिप होता है। चैम्पियनशिप तो आपको बाहर में बहुत मिलता है, लेकिन हम लोग का नोटिस में बहुत कम है। सो दिस इज़ आई थिंक सो मेरा तरफ से सही से ये बहुत बड़ा हिप हॉप चैम्पियनशिप डांस कंपटीशन था। और मैम जो विनर्स है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेगा? विनर से डिज़र्विंग है वो लोग, बहुत डिज़र्विंग है। ऐसा नहीं है, जजेस भी ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जानता है, समझ गया ना। तो जजेस लोग भी ऐसा नहीं कि उन लोगों को जानता है, हम लोग अलग अलग पार्ट से बुला के लेके आया है। तो ऑब्वियसली उन लोगों को मिला है, तो ऑब्वियसली वो डिज़र्विंग है। सो हमको भी सेटिस्फाइड है विनर से। थैंक यू सो मच। Hello, my name is Nangbia Chanda. So I'm the organizer of the Best 2023. तो ये मेरा इवेंट पहले 2016 में हुआ था, तो ये 6 साल के बाद आया 2023, क्योंकि एक्चुअली बहुत साल पहले किया था। ये एक बैटल एडिशन था, तो मैंने इस बार सोचा कि अरुणाचल डांसर्स लोग के लिए लाइक टीम वर्क करके एक क्रू चैम्पियनशिप रखते हैं, हिप हॉप चैम्पियनशिप। तो उस बेसिस में यहाँ इस बार हम ये सोच के रखा। और सबसे बड़ा थैंक्स ये इवेंट का सक्सेस का पीछे है, फर्स्ट तो मेरा मॉम, मेरा मम्मी, और सेकंड मेरा फ्रेंड्स। स्पॉन्सरशिप, विदाउट स्पॉन्सर तो बहुत मुश्किल था, तो वही सबको थैंक यू है। और लाइक जो आज का विनर है तो वो एक असम का ये है, बाहर का क्रू का। तो एक बाहर स्टेट से आके या अरुणाचल में पार्टिसिपेट करके जीत के गया। तो अरुणाचल आर्टिस्ट को यही बोलते हैं, बाहर के आके हम लोग का अपना स्टेट पे जीत के गया, तो आप लोग भी ऐसे कोशिश करो वो लोग का जगह लेने, ताकि हम लोग का अपना स्टेट का नाम हो। तो ये सीज़न का तो इस बार असम का ले गया। तो सेकेंड कोई नहीं, सेकेंड एक अरुणाचल का ही है हम लोग का अपना। तो और हम लोग का डांसर्स अभी बहुत निकलना है, तो आधा पार्टिसिपेंट तो आया नहीं, क्योंकि कोई लोग बाहर रहते हैं, कोई लोग पढ़ाई के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। पर फर्स्टली तो लाइक पढ़ाई करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है। तो क्योंकि वो एक बैकअप प्लान होता है लाइफ का। अगर हर किसी का करियर डांसर्स में नहीं बनते, कोई नहीं, लेकिन उसमें एक बैकअप हो जाता है। तो जो टैलेंट होता है वो होता है कि वो लोग अपना टैलेंट को कभी खोना नहीं है। तो लाइक मैं अभी डांस में थोड़ा साल गैप हो गया, लेकिन मैं इसी लाइन में अभी इवेंट मैनेजमेंट में करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अरुणाचल का आरती से आगे बढ़ने के लिए। तो ये मेरा अपना ही प्राइवेट इवेंट है, मेरा अपना इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये इस साल का इस बार मैं खुद किया और सक्सेस हुआ, तो इसका पीछे तो सबका हाथ है, कोई कभी अकेला नहीं करते। मेरा टीम स्पेशली, क्योंकि ये मेरा 3 महीना का मेहनत है, बिना सोए बिना खाए, तो आज तो हो गया। तो मैम वही मैम सुनने में आया कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं किया ये प्रोग्राम को, तो गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेगा? अभी ऐसे चीज़ को तो हम लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आगे पहले हम लोग प्रूव करना पड़ता है ना, तब गवर्नमेंट एक सपोर्ट करेगा। हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करता तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग का टैलेंट है, हम लोग कैसे ले जाते हैं वो हम लोग के ऊपर है। तो लाइक गवर्नमेंट का इसमें कुछ रिलेट नहीं होता है। बस हार जीत तो होते ही रहते हैं लाइफ में, वो सिर्फ डांस में नहीं होता, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ टैलेंट लेके नहीं जाते, कभी लक भी साथ होते हैं। टैलेंट और लक अगर साथ होता है तो बहुत लाइफ आगे निकलते हैं। तो शायद आज किसी का दिन है, आज किसी का दिन है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन विनर तो एक ही होता है। तो कभी डिस्करेज नहीं होना ये सब के लिए, क्योंकि एक हारने से एक वहाँ पे जानना है कि अभी क्या से सीख के, क्या गलत हो गया, वहाँ से सीख के और आगे बढ़ना है। मैम लास्ट अपडेट लेना चाहेगा आपसे, तो मैम ये प्रोग्राम नेक्स्ट एडिशन कब होगा? अभी तो एक्चुअली हम भी बार बार करने के लिए तो नहीं सोचते, क्योंकि हमेशा ये एक चौथा स्टेज है, फिर हर समय तो स्पॉन्सर देना भी मुश्किल होता है। तो इस बार किया तो मैं सोचता है कि 2 साल के बाद करेगा, उसमें फिर कुछ नया लाएगा, कुछ नया चीज़ करेगा, जितना हो सके नेशनल लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फर्स्ट तो नोटिस में कर रहेगा, कि अभी तो नोटिस में पहला हो गया, क्योंकि अभी हम भी डांस सीन में है, तो हमको भी बहुत साल से जानते हैं, इसलिए मेरा मार्केटिंग बाहर से नहीं होने से मेरा डांस लाइन में पकड़ लेते हैं बहुत लोग। तो ये नेक्स्ट 2 साल या फिर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी कर लेते हैं।